Hello, dear students. I'm Murtaza Fazli. As you all are quite acquainted with the fact that I'm your English literature teacher. So, today's lecture is for the students of class 8, J.K. Bose, and it is a short story named as The Unthankful Man. तो बच्चों आपको मालूम है कि इस फ्रेज़ का सादा सा एक मतलब है कि ना शुक्रगुजार एक इंसान की कहानी। तो इसका लुब्बे-लुबाब इस कहानी का ये होता है कि ये एक ऐसे एक इंसान की एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन से इसका जो प्रेमाइसिस है या प्लॉट है, ये कहानी किस तरह से फ्रेम की गई है कि एक आदमी एक सफ़र पे निकलता है और उसमें उसको कुछ मुख्तलिफ़ लोग जिसमें कुछ जानवर और कुछ एक इंसान, इनसे इसका सामना होता है। और उस इनकाउंटर से क्या होता है कि कुछ एक्सपीरियंसेस मिलने को मिलता है, और जिसका जो और इन्हीं एक्सपीरियंसेस का जो मेजर थीम है दैट इज़ अबाउट थैंकफुलनेस, शुक्रगुजारी। और ये शुक्रगुजारी और नाशुक्रगुजारी के आसपास ही ये कहीं न कहीं ये पूरी कहानी बुनी गई है। तो बिना वक्त को ज़ाया किए हुए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। मैं कुछ 2-3 पैसेजेस इसके पढ़ना चाहूँगा और उसके बाद एक नटशल में इस पूरी कहानी को आप तक समझाने की कोशिश करूँगा। सो this is a story about thanklessness. Raman, a poor man in the story, is a helpful person. He helps the tiger, the monkey, and the goldsmith. The tiger and the monkey proves to be thankful creatures, while as the goldsmith makes a brazen show of his thanklessness and deceit. Read the story and find out the moral of the story. Raman was a poor Brahmin who lived with his wife on the outskirts of a small town. He was so poor that he and his wife had to remain hungry for days together. His wife was fed up with their poverty. One day she said to her husband, "Why don't you go to the nearby town and seek some job?" Raman liked the idea and decided to go to a nearby town to look for a job. On his way, he had to pass through a forest. He was tired and hungry. He gathered some wild fruits and sat down by a well to eat it. Just then he heard some voices. The voices were coming from the well. He was surprised to hear the voices coming from the well. He peeped into the well. To his surprise, he saw a tiger, a monkey, a snake, and a man in the wall. The tiger saw him and said, "Sir, kindly help me out of the well. I will be ever grateful to you for that kind action." Raman was frightened. He said, "If I take you out, you will eat me up. Therefore, I cannot help you out of the well. You remain where you are." The tiger said, "Have faith in me. I promise that I will do no harm to you. On the other hand, I will try to help you. Please help me out." "Thank you, kind man," the tiger said to him. "If you ever need my help, please come to my cave. But mind you do not take the man out of the well. He is the most ungrateful creature on this earth." So saying, the tiger went away from there. As soon as he was gone, the monkey called out to Raman and said, "Kind man, this well is too steep. I can't climb out of it. Please help me out." Raman readily pulled out the monkey. The monkey also thanked Raman and said, "If you ever need my help, please come to the mango tree by the river outside this jungle." He then advised him not to pull the man out of the well. And he also said that he is a very ungrateful creature. Do not listen him. Then the monkey went away. तो ये कुछ पैसेज मैंने आप तक पढ़ने की कोशिश की। तो अब कहानी का ये है कि रमन एक ब्राह्मण, एक बहुत गरीब एक शख्स होता है, और ये और इसकी जो शरीक हयात है दैट्स अ वाइफ, ये एक छोटे से कस्बे के बाहर के हुदूद के आसपास ये लोग रहते हैं, और ये काफ़ी मुफलिसी और गरीबी से दो चार हैं, और भूख से इनका हाल बेहाल है। कहीं कहीं दिनों तो इन्हें फाककशी पे मजबूर होना पड़ता है। और आपको बताते चलूँ कि तो इस हालत ज़ार से इसकी जो वाइफ है वो काफ़ी नाराज़ हो जाती है और काफ़ी परेशान हो जाती है, और उसे सलाह देती है कि तुम क्यों इस जगह से कूच नहीं करते हो और किसी जगह जाके इस
हमारे हमसायगी में जो कस्बा है वहाँ जाके कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते। तो इस तरह से वो अपनी जो वाइफ की बात मानता है और वहाँ काम की तलाश में चला जाता है। तो काम की तलाश में जाते जाते वहाँ पे उसे एक जंगल से जाना होता है, और उस जंगल से जाते जाते उसे काफ़ी थकान महसूस होती है और वो काफ़ी भूख से भी तड़प रहा है। तो वो करता क्या है कि वो कुछ मेवाजात जमा करता है पेड़ों से कलेक्ट करके, और इन द मीनवाइल जो ही वो बैठ के खाने लगता है उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब ये आवाज़ें क्या होती है? ये आवाज़ें होती हैं, सामने एक कुआं है और उस कुएं से कुछ अजीब गरीब किस्म की आवाज़ें आती हैं। तो जब वो जाता है और उस कुएं के नीचे देखता है तो देख के उसको हैरानी होती है कि वहाँ क्या है। एक शेर है, एक बंदर है, एक सांप है और एक इंसान है। तो 4 तरह के जीव जंतु वहाँ पे फंसे हुए हैं। और रमन ये देख के बड़ा हक्का बक्का हो जाता है और वहाँ से आवाज़ आती है किसकी? शेर की। और शेर कहता है कि आली जनाब, मुझे इस कुएं से मेहरबानी करके निकालिए बाहर। अगर आपने ऐसा किया तो मैं ज़िंदगी भर आपका एहसानमंद रहूँगा और आपके इस कदम को, आपके इस एक्शन को कभी नहीं भूलूँगा। और रमन मगर डर जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कुछ ऐसा आपके सामने एक अजीम रुबाब वाली एक क्रिएचर, जिसे शेर एक नॉर्मली हमारे जहनों में ये बिठाया जाता है कि एक खूंखार एक जानवर है, तो उसे जाहिर से बात है इंसान की जहनी कैफियत ये होती है कि उसे देख के डर जाएगा। और रमन भी उसे देख के डर गया और रमन डर के ये कहने लगा कि अगर मैंने आपको बाहर निकाल दिया हो सकता है कि आप मुझे खा जाएंगे, तो इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मुझे माजरत दीजिए, आप जहाँ हैं वहीं बैठे रहें। तो इसको देख के थोड़ा सा शेर मायूस हो गया और उसने इल्तिजा करने लगा कि मुझ पे भरोसा कर लीजिए, खुदा के लिए मुझ पे भरोसा करें, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको एक छोटा सा भी ज़रर या नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। सो व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट कि इस इंसान को, इस जानवर शेर पे रहम आता है, उसको बाहर निकालता है। और जो ही वो बाहर निकालता है तो क्या कहता है? थैंक यू काइंड मैन, ए नेक दिल आदमी, एक नेक दिल शख्स, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अगर कभी भी ज़िंदगी में आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो आप ये याद रख लीजिए, आप इससे कहीं थोड़ा सा फासले पे ही मेरा गार है। केव मीन्स गार, इंग्लिश में केव और उर्दू में गार। तो आप वहाँ आ सकते हैं और कोई भी आपको इमदाद की ज़रूरत हो मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। मगर जाते जाते वो एक डिस्क्लेमर यानी कि इत्तला या एक याददाश्त देते जाता है कि ख़बरदार करते जाता है कि ख़बरदार ख़बरदार ख़बरदार, यहाँ पे एक इंसान भी फंसा हुआ है इस कुएं में, आप कभी भी गलती से उसे न निकालिएगा, क्योंकि ये इंसान इस दुनिया का सबसे नाशुक्रगुजार एक खिलकत है। सो व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट, उस देर के बाद एक जो बंदर है वहाँ पे, वो चिल्लाने लगता है कि मुझे मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, और मैं इस कुएं के ऊपर नहीं चढ़ सकता, तो इस वजह से मैं बाहर नहीं आ सकता। तो रमन ने रहम, जो उसका जो दिल में रहम दिली का जो तकाज़ा है उसके हिसाब से उस बंदर को वापस बाहर निकाला। उस बंदर ने रमन का शुक्रिया अदा किया और ये कहने लगा कि अगर आपको मेरी ज़रूरत होगी तो मैं दरिया के किनारे एक आम का पेड़ है, उसकी डाली पे मेरा बसेरा है, आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़े बिला झिझक आप वहाँ पे आके मुझसे इमदाद मांग सकते हैं। मगर वो भी जाते जाते ये एडवाइस देता गया कि मेहरबानी करके आप इस इंसान को ना निकालें, क्योंकि ये एक नाशुक्रगुजार खलकत है। तो इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती है। 2 जानवर चले गए, अब वहाँ पे कौन फंस जाता है? सांप। तो सांप भी यही कहता है, सांप कहता है कि मुझे बाहर निकाले। तो रमन, अब जिस तरह से शेर का एक किस्सा है उसी तरह सांप से भी इंसान डरता है। तो उसी जहनी कैफियत के मद्देनज़र रमन भी डर जाता है सांप से, और वो कहता है कि अगर मैंने आपको बाहर निकाल दिया तो आप तो मुझे डस देंगे और मेरी मौत हो जाएंगी, तो ये अक्ल का तकाजा नहीं है कि मैं आपको बाहर निकालूं। तो होता क्या है उसके बाद, फिर सांप इल्तिजा करने लगता है कि मेहरबानी करके आपको खौफ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो रहम को फिर से उस पर रमन को फिर से उस सांप पे रहम आ जाता है
और जो ये सांप है उसका शुक्रिया अदा करता है और ये कहता है कि अगर आपको कोई मेरी ज़रूरत हो तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। मगर एक बात याद रखिएगा, जो बाकी दो जानवरों ने कह के गए हैं कि इस इंसान की कभी मदद ना करना क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। सो उसके बाद वो रेंगता हुआ वहाँ से चला गया। तो अब बारी आती है हज़रत इंसान की, जो वहाँ पे फंसा हुआ है। तो वो भी अपनी ज़रूरत के मारे रमन को आवाज़ देता है कि मेहरबानी करके मुझे बाहर निकाल लीजिए। तो रमन सोचने लगता है कि अरे ये तो इंसान है, जब जानवरों से मुझे कोई अभी तक नुकसान नहीं मिला तो ये इंसान मेरी क्या मुझे क्या नुकसान देगा। तो बिला झिझक उसने उसको वहाँ से हाथ दे के निकाल दिया उस कुएं से। और उस आदमी ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर कभी भी आपको मेरी ज़रूरत है तो मैं वाराणसी नाम के एक शहर में रहता हूँ, मैं पेशे से एक सोनार हूँ। और ये कहता हुआ चला गया। तो रमन इसी तरह करते करते टहलते टहलते उस कस्बे में पहुंच गया, जो हमसाये में जो कस्बे हैं। बहुत दिनों तक थका मांदा हारा वो एक काम की तलाश में रहा, कुछ हासिल ना हुआ उसे, और भूख प्यास के मारे वो थका हुआ बिल्कुल परेशान हो गया एक जगह पे। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। और उसने यह तहिया कर लिया कि वो घर वापस चला जाएगा। मगर फिर जो घर जाने का रास्ता है उसी जंगल से होके गुजरता है। तो जंगल से वापस आया तो उसे याद आया कि बंदर ने कहा था कि मैं उस दरिया के किनारे जो आम का पेड़ है वहाँ रहता हूँ। तो बिला झिझक वो चला गया उससे मदद मांगने के लिए। तो मंकी ने उसे देखा, बंदर ने उसे देखा। तो रमन ने कहा कि उसने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया, वो बहुत दिनों से फाका है। और फिर बंदर ने उसके लिए क्या लाया वहाँ से, रस भरे मीठे आम। और रमन ने इन आम को खाया, जो ये तनावुल किया, इन जो ये फ्रूट्स हैं आम, और इससे उसकी भूख मिट गई और उसने शुक्रिया अदा किया किसका, बंदर का। और ये कहानी आगे चलती है, गार के तरफ जाता है जहाँ पे शेर है। शेर को याद आया और शेर ने देखते ही उसे पहचान लिया और उसे गिफ्ट में एक नेकलेस यानी कि हार दिया। और उसे कहा कि एक बार मैंने एक यानी कि प्रिंस शहज़ादे की जान बचाई तो उसने इनाम के तौर पे मुझे दिया था, तो ये आप रख लो, ये आपके काम आ जाएंगे। तो रमन बहुत खुश हुआ और इस हार को लेके वो उसने सोचा कि मैं इससे एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, और वो आगे बढ़ गया। तो सफ़र में वो जो ही अपने घर पहुँचा तो इस टाउन के तरफ पहुँचा तो उसको याद आ गया कि एक सोनार भी है जिसकी मैंने मदद की, चलो इसके साथ जाके कुछ डील किया जाए, तो उससे बातचीत किया जाए। तो सोनार के पास जाता है। तो ये बात ये होती है कि ये जो हार है ये गोल्डस्मिथ जो है सोनार ने बनाया था इस शहज़ादे के लिए, और ये कहीं महीनों से लापता था ये हार। तो उसने इससे रमन से कहा कि ये आपको कहाँ मिला। तो उसने कहा कि मुझे इस तरह से मिला। तो उसने कहा कि आप यहीं पे इंतज़ार करें, मैं बादशाह से थोड़ा मिल के आता हूँ। तो बादशाह से कहने लगा कि आली जनाब, जो एक आदमी आया है जो शहज़ादे का हार लेकर आया है, और ये हार मैंने शहज़ादे के लिए बनाया हुआ था। मुझे लगता है कि इसी आदमी ने शहज़ादे का कत्ल किया है और इस हार को वो चोरी कर लिया है। तो जो बादशाह है वो इस हार को पहचान पाया और उसने अपने फ़ौज को भेज दिया इस रमन को अरेस्ट करने के लिए। और होता क्या है कि वहाँ से उसको अरेस्ट करके लाया जाता है और उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपने हमारे शहज़ादे का क्या किया है, हार चोरी किया है और आपको जेल में डाला जाए। तो देखिए जिसके साथ एहसान किया उस इंसान के साथ उसने कैसा सलूक, नारवा सलूक रमन के साथ किया, और जिसकी उसको वार्निंग दी गई थी कि उस पर एहसान नहीं करना। और ये बड़ा मायूस हो गया और कहने लगा कि बेशक ये एक बहुत ही नाशुक्रगुजार इंसान है, वो जानवर सही थे। और फिर
उसे याद आता है कि सांप ने कहा था कि जब भी तो मुश्किल हो तो मुझे याद करना, मैं एकदम से पहुंच जाऊंगा। तो उस सांप को याद करता है, सांप वहां पहुंच जाता है। तो मामला कहता है कि कैसे तुम यहाँ पे पहुंच गए। तो वो अपना जो किस्सा है वो सारा सुनाता है, और सांप कहता है कि डोंट वरी, आपको कोई परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक प्लान है। मैं ये है कि मैं हरम में चला जाता हूँ रानी की, और उसको डस लेता हूँ, और जो मेरा जहर है उसके जिस्म में फैल जाएगा और उसको बेहोश कर देगा। और जो बादशाह है वो बड़ा मायूस हो जाएगा, और कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाएगा। मगर अगर सिर्फ एक इलाज ये है कि अगर आप अपना हाथ उसके पेशानी पे रख दें तो वो जाग जाएंगे। द किंग विल बी प्लीज्ड एंड विल सेट यू फ्री। और ये देख के बादशाह खुश हो जाएगा और आपको रिहा कर देता है। और होता यही है कि कोई भी इसका इलाज मुआलजा नहीं मिलता है, तो ये ऐलान करता है कि जो भी मेरी रानी को सेहतियाब करेगा उसे एक बहुत ही खूबसूरत इनाम मिलेगा। तो फिर रमन ये मदद करने की ये करता है, पेशकश करता है, और वो जाता है और इसी तरह से जो सांप ने कहा है वो करता है, और ये रानी बिल्कुल सेहतियाब हो जाती है, ठीक हो जाती है। बादशाह कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए और तुम किस तरह से इस जेल में आ गए। तो रमन सारा किस्सा उसे बताता है कि किस तरह से इस सोनार ने उसे धोखा दिया और कितना नाशुक्रगुजार इंसान है। ये सुनकर बादशाह को बहुत तेश आया, उसने सोनार को बुलाया और अपने फ़ौज को उसे अरेस्ट करने के भेजा, और उससे ये कहा कि तुम एक बड़े जालिम और नाशुक्रगुजार इंसान हो, तुमने एक मासूम इंसान पे गलत इल्ज़ामात लगाए अपने फ़ायदे के लिए, और इस इंसान ने तुम्हारी जान बचाई थी, इसकी मदद करने के बदले तुमने इसके साथ इतना जुल्म किया, और न अब तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में सड़नी होगी। तो इस तरह से जो किंग है वो रमन की तरफ आया और एक थैली भर के सोने की सिक्के उसे दे दिए और कहा कि जाओ अपने घर और खुशी खुशी रह लो। रमन ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया, और फिर ये दोनों जो ये हैं कपल्स हैं, ये खुशी खुशी ज़िंदगी भर रहने लगे। तो ये कहानी थी आज की। बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप इस कहानी से थोड़ा सबक लें, और हमेशा याद रहे कि नाशुक्रगुजारी एक अच्छी फ़ैल नहीं है। हमेशा हमें अपने खुदा से और बाकी जो चीज़ें हमें नेमतें मिली हैं उनका शुक्रगुजार रहना चाहिए, खुसूसन ऐसे वक्त में जहाँ पे कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपने घेरे में रखा है। ऐसे सूरत हाल में ज़िंदगी की जो ये एक बेशकीमती जो असासा है, उसको जीना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसका फ़ायदा लेना, इस ज़िंदगी का फ़ायदा लेना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ैल है। तो इसी के साथ आज का एक लेक्चर इख्तिताम होता है। अपने टीचर मुर्तज़ा फ़ाज़ली को दीजिए इजाज़त। मेरे साथ कैमरा लाइन पे जुड़े हुए थे अहमद सॉलिह।